Sir. Professor Anil D. Sastbuddhe sir is regularly guiding CEGR and always grateful to us. So we are thankful to you, sir, always supporting us. And one line, he is the one of the most honest and transparent person I have seen in the government structure. I have visited more than 500 university and institutions, but nobody is able to claim that we have any financial transaction with AICT or any of the officer. So this is the credibility what we have got for you, sir. एक वर्ड है सर, एक सूर्योदय की तरह आप आए एआईसीटी में और सीताराम सर उसको एक नई ऊंचाई पर ले जा रहे हैं. तो वी हैव फॉर्चुनेट कि दोनों आज साथ में हैं. Namaskar, very good morning to all of you, all the dignitaries on the dais, especially Chairman AICT, Dr. Sitaram. And we had two brilliant exposition of Vikasit Bharat and what is our dream in 2047, both by Dr. G.D. Yadav, who is also the president of CEGR now. I should say CEGR is very lucky to have a president of his stature. So compliments to him for having even accepted that. So Ravish, you are really lucky to have him as the president. Dr. K.K. Agrawal, who has been one of the brilliant academicians, also predecessor of my NBA organization, where he has been associated. We have Kavarji, we have Soni ji, and all others who are there on the dais, as well as off the dais in the audience. I think this is a very important occasion. CEGR is having its 12th Foundation Day, maybe delayed by some days, but nevertheless, 12 साल यानी एक तप बोलते हैं हमारे हिंदी में, संस्कृत में. तो एक बहुत बड़ा तप उन्होंने किया हुआ है, ये तपस्या है. इस तपस्या का फल हमको दिख रहा है कि हजारों यूनिवर्सिटीज़, कॉलेजेस में CEGR का कार्य चल रहा है. तो आपने बुक डोनेशन का हो या सपोर्ट सिस्टम तैयार करना हो, एजुकेशन फील्ड में जो कार्य किया है सराहनीय है. और इसलिए यहाँ सब लोगों को मैं धन्यवाद अर्पण करते हुए आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं कि 2047 विकसित भारत के बारे में प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते रहते हैं, लेकिन वहाँ जाने के लिए क्या क्या सपने हमको देखने हैं. हम जानते हैं डॉक्टर अब्दुल कलाम जी हमेशा कहते थे ड्रीम बिग, एंड वन ऑफ द बिगेस्ट ड्रीम्स, not only Prime Minister, but as rightly said by G.D. Yadav ji, the entire nation is today dreaming of absolutely developed India, Vikasit Bharat by 2047. That means it is not just developed, but in terms of all parameters, we should be almost number one, whether it is in terms of economy. Right now, from 10th to 5th largest economy we have become. Very soon we will become 4th and 3rd, but our vision should be by 2047 the largest economy of the world, and it is achievable. जब हम कोई भी सपना देख रहे हैं तो सपना सिर्फ सपना है या उसको साकार करने में हमारे इसमें ताकत है, ये दोनों को देखना पड़ेगा. अभी गत 10 साल का इतिहास जो प्रधानमंत्री मोदी जी आने के बाद देखेंगे तो सारे चीज़ों में भारत की प्रगति जिस ढंग से हो रही है उससे हम सब लोगों को पूरा विश्वास होना चाहिए कि ये सपना साकार होने वाला है. और इसमें 2-3 चीज़ें भी हमको जोड़नी चाहिए कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो अभी 3.5 साल हो चुके हैं, इट हैज़ आल्सो कम इन प्लेस एट द राइट टाइम. इनफैक्ट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली वट एवर यू से, it coincided with the advent of the COVID pandemic, and therefore many nations of the world suffered actually almost one academic year. Many of them gave a leave for 1 year for the academic institutions. Our institutions were also closed. They were all locked, but nevertheless, our education never got locked. It was continuing, thanks to Digital India mission, which we had undertaken long ago, which helped us in continuing online education. Today, making use of that, we talk about blended education. We have part of the education can be imparted to the remotest possible areas through online mode, but also physical mode has its own significance, importance, and that is also realized by us after having started the institutions and colleges. Some learning loss had happened during the pandemic period. How do we make it up? How do graduates become still employable through
whether it is AICT's earlier initiatives of internship which are continuing. Also now for providing jobs, how do we make them happen? That is also going on. I think in each of the fields, making use of technology on one side, and actually the value system which India represents taking forward, we have been able to achieve a lot of things in the last 10 years. And that is visible in all aspects. I said economy, which is third largest, but you come to the digital transactions, money transactions, UPI has made it 48% of the world's digital transactions happen from India. A phenomenal thing, and that is why many of them who were naysayers and were saying that भारत में कैसे प्रगति हो सकती है, आज कहीं भी जाइए, हमारे रेलवे स्टेशन देखिए, हमारे बस स्टैंड देखिए, हमारे रास्ते देखिए, हमारे एयरपोर्ट्स देखिए, they are spotlessly clean. Many cities have become cleaner and cleaner, and a lot of business is coming in. This is as far as the economy is concerned. डॉक्टर GD यादव जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से हमको नेट ज़ीरो कैसे होना है उसके बारे में भी बताया, कौन कौन सी चीज़ें करनी चाहिए. लेकिन हम यदि हमारे कैंपसेस में ये सब उदाहरण नहीं पेश करेंगे तो शायद उसको अचीव करना मुश्किल होगा. Ultimately, all of them who come into higher education, complete their degrees, postgraduate degrees, PhDs, they get into the society. Some of them will become probably IAS officers, IPS officers. Some of them will become university faculty and then maybe later leaders in the academic institutions. Some others may get into jobs, be it in industry, be it in government. And we participate in the social life outside. But if that sensitization happens in the colleges and universities, they will follow that example later in their life. And that's why if we have to become net zero, carbon neutral by 2050, it is the educational institutions who have to provide that leadership role. And therefore, whether it is circular economy in terms of reuse, recycle, all of those principles which are already there in our Indian psyche, in Indian DNA. अब देखिए घर में कोई भी चीज़ हम आसानी से फेंकते नहीं हैं, उसको एक कमरे में रखते हैं कि कहीं ना कभी उसका उपयोग हमको होगा. ये भावना जो है ये नथिंग बट रिसाइकल, रीयूज एंड साइक्लिक इकोनॉमी. और उसका उपयोग भी हम करते हैं, कई बार ढूंढ के निकालते हैं कहीं से, कमरे कोई कोने में होता है उस पर. तो इसलिए ये सारी चीज़ें वैसे ही वाटर हार्वेस्टिंग हो, वाटर रिसाइकलिंग हो, या वेस्ट जो जनरेट होता है. GD यादव जी ने हमारे देश में कितना फूड वेस्ट होता है मैरिज के बारे में बताया. इवन हॉस्टल के मेस में कितना वेस्ट जनरेट होता है, वेस्ट होता है, उसको हम कैसे रिसाइकल कर सकते हैं, उससे हम एनर्जी कैसे प्रोड्यूस कर सकते हैं, और सोलर एनर्जी का उपयोग कैसे कर सकते हैं. ऐसे सारे उदाहरण यदि हम कॉलेज और यूनिवर्सिटी में करना शुरू करेंगे तो ज़िंदगी में वो स्टूडेंट कहीं भी जाए उसको अपनाएगा, उसको फॉलो करेगा. तो इसलिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस आर वेरी वेरी वाइटल एंड इम्पॉर्टेंट फॉर डूइंग दैट. डॉक्टर के अग्रवाल जी को मैं सुन रहा था, आउटकम बेस्ड एजुकेशन के बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से कहा. हम बात तो बहुत करते हैं आउटकम बेस्ड एजुकेशन की, लेकिन ये आउटकम को मेजर करने के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो एग्जामिनेशन सिस्टम है. वहाँ अभी भी हमारे क्वेश्चन पेपर रोट लर्निंग बेस्ड है, और इसलिए हमने AICT में एग्जामिनेशन रिफॉर्म्स के नाम से सारे एग्जामिनेशन में कैसे, उस टाइम में हमने ब्लूम्स टैक्सोनॉमी का उपयोग किया. अभी हमको पता चला है कि हमारे देश में जो शिक्षा व्यवस्था थी इंडियन नॉलेज सिस्टम्स की, वहाँ इससे भी बेहतरीन तरीके से एजुकेशन में कैसे आउटकम बेस्ड एजुकेशन होता था गुरुकुल सिस्टम से, ये भी पता चला है. तो इसका मतलब हमको सिर्फ ब्लूम्स टैक्सोनॉमी नहीं, किंतु हमारे विद्वान जो ऋषि मुनियों ने लिखा हुए वेद पुराण में भी बहुत सारी आउटकम बेस्ड एजुकेशन जो रखा है उसको उजागर करते हुए, बाहर निकालते हुए, उसको भी हमारे इंस्टीट्यूशंस में अडॉप्ट करना चाहिए. ये बहुत महत्वपूर्ण बात है. और इसलिए रोट लर्निंग के बजाय हमको स्टूडेंट को क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी, ये सब आने के लिए कैसे क्वेश्चन पेपर सेट करने चाहिए. हायर ऑर्डर ऑफ थिंकिंग जो होता है, फर्स्ट इज़ मेमोराइजेशन. लेकिन हम कई बार क्या होता है कि हम वेस्टर्न मॉडल को अडॉप्ट करते हुए वहाँ की टर्मिनोलॉजी और फ्रेजोलॉजी को हमारे यहाँ भी अपनाते हैं, और फिर जैसे पेंडुलम एक लेफ्ट से राइट से लेफ्ट जाता है, वैसे हम घूमते रहते हैं. तो इसका मतलब हम जब रोट लर्निंग की
बात करते हैं और कहते हैं कि ये ठीक नहीं है, लेकिन कुछ मिनिमम मेमोराइजेशन भी तो ज़रूरत होता है। अभी अभी डॉक्टर यादव जी ने मुझे किसी के बारे में पूछा तो उसका मुझे याद नहीं आ रहा था, तो इसका मतलब मेमोरी इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं है कि मेमोरी से छोड़ देंगे तो नहीं चलेगा, क्योंकि हम देखते हैं आज के बच्चे उनको 13x7 यानी 13 गुना 7 बोलेंगे तो आई विल 100% गारंटी नन ऑफ द हाई स्कूल के बाद के स्टूडेंट जो है ना, कॉलेज वाले, उनको कैलकुलेटर के बिना नहीं कर सकते। लेकिन हम 30 स्तर के पढ़े जो होते हैं वो हम बाय हार्ट होते थे, तो वो मेमोराइजेशन इज़ आल्सो इम्पॉर्टेंट। जितना हम ज़्यादा मेमोराइजेशन करके, श्लोक है, घर में श्लोक सिखाते थे घर में पेरेंट्स, तो उससे हमारी मेमोरी पावर जब बढ़ती है तब उसका नॉलेज में परिवर्तन जरूर होता है। तो इसलिए एक तरफ इंफॉर्मेशन, उसको कन्वर्शन करके नॉलेज करना, ये सब महत्वपूर्ण है। कई बार टीचर्स पूछते हैं, स्टूडेंट भी पूछते हैं, आज तो एआई का ज़माना है, चैट जीपीटी का ज़माना है, ओपन एआई का ज़माना है, तो हम कोई भी असाइनमेंट देते हैं तो तुरंत स्टूडेंट, आप तो बोलते हैं कि बहुत सारा आउटकम बेस्ड एजुकेशन के हिसाब से हायर ऑर्डर क्रिटिकल थिंकिंग, एनालिटिकल एबिलिटी वाला क्वेश्चन पूछना चाहिए। ऐसे भी यदि क्वेश्चन पूछते हैं तो चैट जीपीटी से उसका उत्तर आ जाता है और क्लास में लेके हमको सबमिट कर देते हैं। तो इनको ज्ञान प्राप्त हुआ है कि नहीं कैसे पता चलेगा?